So today we are going to understand and discuss our second poem, Asleep in the Valley, written by Arthur Rimbaud. तो पोएमটা स्टार्ट করার আগে আমরা লেখকের সম্বন্ধে কিছু জেনে নিই। ठीक है, पोएम स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के जो पोएट है आर्थर रिम्बाउड, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड, पूरा नाम की जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड, वाज ए फ्रेंच पोएम नहीं, এটা পোয়েম হবে না, এটা পোয়েট হবে, ये पोएम नहीं पोएट होगा। ठीक है, वाज ए फ्रेंच पोएट फ्रॉम द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरीर একটা ফ্রেঞ্চ পোয়েট ছিলেন আমাদের আর্থার রিম্বাউড। হি স্টার্টেড রাইটিং পোয়েট্রি ইভেন বিফোর হি রিচড হিজ টিনস, মানে টিন বয়সকালে তিনি পৌঁছাবার আগেই কী করেছিলেন, তিনি পোয়েট্রি লেখা স্টার্ট করেছিলেন। টিন মানে 14-15 বছরের ছেলে মেয়ে। ঠিক আছে, टीन मतलब क्या होता है, 14-15 साल के बच्चे को टीन कहते हैं। तो उससे पहले ही मतलब 10-12 साल से ही इन्होंने क्या किया था, तो पोएट्री लिखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ही स्टॉप्ड राइटिंग पोएट्री एट द एज ऑफ 19, 19 বছরে যখন তিনি হয়ে গেছিলেন তখন তিনি স্টপ করলেন पोएट्री लेखा। 19 जब एज का हो गया वो, ठीक है, 19 साल का, तब उन्होंने क्या किया, पोएट्री लिखना उन्होंने बंद कर दिया। हीज मेजर वर्क्स, उन्होंने क्या क्या लिखा था, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, तो टू म्यूजिक অ্যান্ড ইভিনিং প্রেয়ার। ঠিক আছে, এই দুটো ছিল সব থেকে উল্লেখযোগ্য তার কাজের মধ্যে। ঠিক আছে, द प्रेजेंट पोएम ओरिजिनली टाइटल्ड, ये एक टाइटल है अलग ही लैंग्वेज में, ठीक है, उन लोगों का फ्रेंच लैंग्वेज में, वाज इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री कॉल्ड, তো ওনার একটা পোয়েট্রির কালেকশন ছিল, পোয়েমের কালেকশন ছিল, সেটা থেকে নেওয়া আছে। ঠিক নেওয়া হয়েছে এই পোয়েমটা। কোন পোয়েমটা, তো আমাদের অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি, সে হিজ কালেকশন অফ পোয়েট্রি, তার নাম কি ছিল, তো তার নাম ছিল পিসেস। কবে লেখা হয়েছিল, তো 1872। ठीक है, उसका एक पोएट्री का कलेक्शन था जिसका नाम था पीसेस। कब लिखा गया था, तो 1872 में। उसी से लिया गया है हमारा अभी का पोएम। कौन सा पोएम, तो एस्लीप इन द वैली। दिस पोएम इज रिटन इन द मॉडल ऑफ द इटालियन सोनेट। किस टाइप से लिखा गया है, কীভাবে লেখা হয়েছে, তো ইটালিয়ান সনেট হিসেবে লেখা হয়েছে। দ্যাট হ্যাজ 14 লাইন্স। ইটালিয়ান সনেটে কত লাইন থাকে পোয়েমে, তো 14টা লাইন থাকে। ডিভাইডেড অ্যাজ অক্টেভ অ্যান্ড सेस्टेड, এবং 14 লাইনে কি থাকে, অক্টেভ থাকে, सेस्टेड থাকে। 14 লাইন में क्या रहता है, অক্টেভ অ্যান্ড सेस्टेड। তো প্রথম 8টা যে লাইন থাকে সেটাকে বলা হয় অক্টেভ। पहला 8 लाइन को क्या कहते हैं, ऑक्टेव, एंड नेक्स्ट 6 लाइन को क्या कहते हैं, तो सेस्टेड। এভাবে গঠিত হয় কোন পোয়েম, তো ইটালিয়ান সনেট। द पोएट एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोर मतलब डिस्क्राइब, एक्सप्लोर माने डिस्क्राइब। द पोएट डिस्क्राइब्स द इनहेरेंट, इनहेरेंट माने হচ্ছে इनबॉर्न, मतलब जन्मगत। ठीक है, মানে জন্মগত। ইনহারেন্ট ফিউটিলিটি মানে হচ্ছে ব্যর্থতা। फ्यूटिलिटी मतलब फ्रूटफुललेसनेस। ठीक है, जिसमें कोई फल नहीं आता, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। द पोएट एक्सप्लोर्स द इनहेरेंट फ्यूटिलिटी ऑफ वार, तो युद्ध का मतलब क्या डिस्क्राइब करते हैं हम लोगों को पोएट, कि वार में क्या है, वार से कोई फ्रूट नहीं आता है। ठीक है, वार करके हम लोगों को कोई लाभ नहीं होता है, ये फ्रूटलेस है। আমাদের পোয়েট কি ডিসক্রাইব করছে, ব্যর্থতা ডিসক্রাইব করছে। কিসের ব্যর্থতা, তো যুদ্ধের ব্যর্থতা, যুদ্ধের ব্যর্থতা। কবি বলতে চাইছেন যে যুদ্ধ করে কোনো লাভ হয় না, এর কোনো ফল পাওয়া যায় না। ফিউটিলিটি মানে হচ্ছে ব্যর্থতা, আর ইনহারেন্ট মানে জন্মগত। জন্মগত মানে আগে থেকেই জানা আছে যে যুদ্ধ করলে কি হবে, ব্যর্থতাই পাবো, আসলে কোনো ফল পাওয়া যায় না, এটা লেখক মনে করেন। This theme is expressed in the contrasting image
ऑफ ए बाउंटीफुल नेचर। बाउंटीफुल मतलब होता है प्रचुर, बाउंटीफुल মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত, বাউন্টিফুল নেচার মানে নেচার খুব ভালো আছে। যে জায়গায় পোয়েম মানে পোয়েমে যে জায়গায় কথা বলা আছে সেখানে নেচারটা কেমন, প্রকৃতিটা কেমন, তো সেটা খুবই সুন্দর। দিস থিম ইজ এক্সপ্রেসড ইন দ্য কন্ট্রাস্টিং ইমেজ। কন্ট্রাস্টিং মানে আলাদা, একটা আলাদা ইমেজ দেখাচ্ছে অফ এ বাউন্টিফুল নেচার অ্যাজ ব্যাকগ্রাউন্ড। পোয়েমের একদিকে কি দেখাচ্ছে, पोएम एक दिखे दिखाচ্ছে खूब ভালো नेचर। पोएम का एक साइड तो दिखा रहा है कि नेचर बहुत अच्छा है, ठीक है। अपर दिखे की दिखाচ্ছে एज ए बैकग्राउंड अ ट्रेजिक डेथ। ट्रेजिक मतलब हो गया, ट्रेजिक माने दुखजनक, ट्रेजिक मतलब हो गया दुखद। एक तरफ तो बहुत ब्यूटीफुल नेचर दिखा रहे हैं पोएट, एक तरफ क्या दिखा रहे हैं, दुखजनक मृत्यु देखाচ্ছেন पोएट हमारे। एक तरफ क्या दिखा रहे तो दुखद मृत्यु दिखा रहे। किसका दुखद मृत्यु, तो एक यंग सोल्जर का, একজন ইয়াং সোলজারের কি দুঃখজনক মৃত্যু দেখাচ্ছেন একদিকে। একদিকে তো নেচার দেখাচ্ছেন বিউটিফুল নেচার, আর একদিকে ডেথ। इन द मिडस्ट ऑफ नेचर स्प्लेंडर। स्प्लेंडर मतलब स्प्लेंडर माने हो गल जाक जमक। स्प्लेंडर मतलब हो गया वैभव, मतलब वहाँ पे नेचर तो बहुत अच्छा है, नेचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहीं उसी जगह में क्या हो रहा है, एक डेथ भी पोएट हम लोगों का डिस्क्राइब किए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ पे एक बहुत अच्छा नेचर है वहाँ तो किसी का डेथ तो वहाँ डिस्क्राइब करना नहीं चाहिए, लेकिन पोएम हम लोग का जो है, पोएट जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो वही है जो ट्रेजिक डेथ है, वही क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्टिंग इमेज। कहाँ पे, एक साइड तो कॉन्ट्रास्टिंग इमेज ऑफ ट्रेजिक डेथ है और एक तरफ क्या है, तो बाउंटीफुल नेचर है, ठीक है। आगे हम लोग जब पोएम पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ आएगा। तो चलो लाइन बाय लाइन पढ़ছি। अ स्मॉल ग्रीन ভ্যালি where a slow stream flows। একটা কি আছে, ভ্যালি আছে। ভ্যালি माने क्या है, दो हिल के बीच में जो जगह रहता है, ठीक है। दो अगर हिल है तो इसके बीच में जो जगह है उसको क्या कहा जाता है, तो वैली कहा जाता है। तो ए स्मॉल ग्रीन वैली, একটা ছোট্ট ভ্যালি আছে, where a slow stream flows। स्ट्रीम माने हो गया छोट नदी, स्मॉल रिवर। स्ट्रीम मतलब हो गया स्मॉल रिवर। एक छोटा सा वैली है जहाँ पे एक नदी बहता है, ठीक है। वहीं पे क्या बह रहा है, एक नदी। वहीं पे क्या बह रहा है, एक छोटा सा नदी। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। चारों तरफ क्या है, चारिदिके কি আছে, तो चारिदिके घास আছে, ग्रास আছে। चारों तरफ क्या है, तो ग्रास है, ठीक है, घास है। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर। स्ट्रैंड्स मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, स्ट्रैंड मतलब हो गया स्ट्राइप्स, स्ट्राइप मतलब हो गया, स्ट्राइप्स माने हो गया फीते। हमारे फीते माथा बांधी ना, सही फीते, मतलब जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रिबन, RIBBON। तो एक रिबन के जैसे यहाँ पे क्या है, सिल्वर कलर का क्या है, स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास, ठीक है। जो ग्रास है उस पर क्या है, यहाँ तो सिल्वर कलर नहीं है, तो इसी पे वो नदी है। कौन सा, ছোট নদীটা এর উপরেই আছে, যে ঘাসটা আছে তার উপরে কি আছে, ছোট নদীটা। সেটা কেমন দেখতে মনে হচ্ছে, যে ঘাসের উপর কি আছে, ব্রাইট গ্রাসের উপর কি আছে, তো লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার, ঠিক আছে, সিলভার রঙের কি আছে, একটা ফিতের মতো আছে। কোনটাকে বলছে, তো ছোট নদীটাকে বলছে। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम्स द सन्स रेज। जो माउंटेन है, माउंटेन टॉप है, वहाँ से क्या आ रहा, तो सन का रेज आ रहा, ठीक है। सन रेज আসছে কোথা থেকে আসছে, তো মাউন্টেন টপ থেকে।
फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम्स द सन्स रेज। तो सूर्य रश्मि আছে, রেজ মানে হচ্ছে সূর্য রশ্মি। তো সূর্য রশ্মি কোথা থেকে আসছে? তো সেটা আসছে মাউंटेन टॉप থেকে, মাউंटेনের উপর থেকে। माउंटेन टॉप से क्या आ रहा है? तो सन रेज आ रहा है, ठीक है। दे फील द हॉलो फुल ऑफ लाइट। तो ये जो ভ্যালি है, এই যে উপত্যকাটা আছে, এটাকে কি বলা হচ্ছে? হলো বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। হলো মানে হয়ে গেল খালি স্থান। হলো मतलब ভ্যাকেন্ট প্লেস। तो खाली स्थान কোনটাকে বলা হচ্ছে? সেই উপত্যকাটাকে কি বলা হচ্ছে? खाली स्थान। उस वैली को ही क्या बोल रहे हैं? होलो बोल रहे हैं, ठीक है। उसको क्या करता है? जो माउंटेन टॉप से जो रेज आता है ना, वो क्या करता है? उस হলো को भर देता है, ठीक है। মাউন্টেন টপ থেকে যে সূর্য রশ্মি আসছে, সে কি করছে? সে হলোটাকে, খালি স্থানটাকে কি করছে? ফিল করে দিচ্ছে কি দিয়ে? তো ফুল অফ লাইট দিয়ে ফিল করে দিচ্ছে। আর সোলজার, এখন পর্যন্ত লেখক কি ডিসকাস করলেন? শুধু নেচার ডিসকাস করলেন, ঠিক আছে। কি ডিসকাস করলেন? নেচার কেমন আছে? তো বাউন্টিফুল মানে পর্যাপ্ত, মানে অনেক ভালো, বিউটিফুল, বাউন্টিফুল। তো এখন পর্যন্ত আমাদের যে পোয়েট আছে, তিনি কি দেখিয়েছেন? আমাদের কিসের বর্ণনা দিয়েছেন? তো নেচারের বর্ণনা দিয়েছেন। এবার কিন্তু একটা আলাদা কন্ট্রাস্টিং ইমেজ আসছে। কি? তো আ সোলজার ভেরি ইয়াং, একটা সোলজার আছে, কেমন? তো वेरी यंग। ये सोल्जर कैसा है? तो वेरी यंग। পরীক্ষায় শুধু ইয়াং দিয়ে দেবে আর ভেরি ইয়াং দিয়ে দেবে এবং জিজ্ঞেস করবে কোনটা হবে। তো মনে রাখবে শুধু ইয়াং হবে না, ঠিক আছে, वेरी यंग হবে। एग्जाम में सिर्फ यंग भी आता है ऑप्शन में और वेरी यंग भी आता है, तो अच्छा से पढ़ना है टेक्स्ट को, ठीक है। तो अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथड। তো এই যে সোলজারটা আছে যে কেমন? ভেরি ইয়াং, শুয়ে আছে, ঠিক আছে। কিভাবে শুয়ে আছে? তো ओपन माउथ, उसका তার মুখটা কেমন? খোলা অবস্থায় রয়েছে। उसका मुंह जो है वो खुला हुआ है। ए पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड। उसका जो हेड है, उसके पीछे क्या है? তার যে মাথা আছে তার পেছনে কি আছে? একটা পিলো আছে। পিলো মানে হয়ে গেল তোষক, ঠিক আছে। কি আছে? এ পিলো মেড অফ ফার্ন। আচ্ছা, পিলোটা কি দিয়ে তৈরি? তো সেগুলো एक्चुअली पिलो नয়, সেগুলো গাছ দিয়ে তৈরি, ঠিক আছে। जो पिलो है वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? तो फर्न गाछ से बना हुआ है, ठीक है। मेड ऑफ फर्न का बना हुआ पिलो है उसके सर के पीछे। बीनीथ हिज हेड मतलब उसके सर के नीचे। তার মাথার নিচুতে কি আছে? তো পিলো আছে। পিলোটা কিসের তৈরি? তো ফার্ন গাছের তৈরি। মানে এখানে ফার্ন গাছ আছে, সেখানেই যে সোলজারটা আছে, সৈনিকটা আছে, তার মাথাটা রয়েছে। তারপর দেখো एस्लीप, वो सोया हुआ है, ठीक है। सोल्जर कैसा है? वो सोया हुआ है। যে সোলজার আছে তিনি কেমন আছে? ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি রয়েছেন। স্ট্রেসড ইন দ্য হেভি আন্ডারগ্রোথ মানে হয়ে গেল ঝোপ, ठीक है। अंडरग्रोथ मतलब हो गया जंगल, झूप जंगल। तो स्ट्रेच इन द हेवी अंडरग्रोथ, तो ऐसे करके ही वो सोया हुआ है। এভাবেই তিনি কি শুয়ে রয়েছেন এবং চারদিকে কি আছে? ঝোপঝাড় রয়েছে। আন্ডারগ্রোথ মানে হয়ে যাচ্ছে বুশেস মানে হয়ে গেল ঝোপ, ঠিক আছে। চারদিকে কি রয়েছে? তো ঝোপ রয়েছে এবং সেখানে আমাদের সোলজারটা ঘুমিয়ে রয়েছেন। সোলজারটা কেমন? তো সোলজারটা হয়ে গেল ভেরি ইয়াং। पेल माने हो गया विवर्ण, जार कोनो कलर नहीं। पेल मतलब हो गया कलरलेस। पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड। यहाँ जो बेड है एक मिनट,
পেল ইন হিজ ওয়ার্ম, তো আমাদের যে सोल्जर আছে से কেমন पेल माने विवर्ण, ठीक है। इसका कलर ये कलर लेस हो चुका है, कौन जो सोल्जर है उसका कोई कलर नहीं है। पेल আমাদের যে সোলজার আছে সে কেমন, তো সে হয়ে গেছে বিবর্ণ, তার मतलब फीका पड़ना, ठीक है। हम लोग का जो सोल्जर है वो कैसा पड़ चुका है, वो फीका पड़ चुका है, कलर नहीं है उसमें। पेल इन इज वार्म ग्रीन, लेकिन उसका जो बेड है मतलब चारों तरफ जो झूप है तार जो बेडटा रही है बेडटा केमन, तो बेडटा रही है ग्रीन। बेड कैसा है उसका, तो बेड है उसका ग्रीन, बेड रही है तार ग्रीन एवं सन सोक्ड बेड एवं कि सूर्य रश्मि चूसे निয়েছে, ठीक है। के तार बेडटा चारदिके जो बेडटा আছে সেটা सूर्य सिक्त मतलब सूर्य रश्मि की করেছে चूसे নিয়েছে সে। किन्तु किन्तु हमारे जो सोल्जर আছে সোলজারটা কেমন, तो সে पेल, तो সোলজারটা আমাদের রয়েছে সে হয়ে গেছে বিবর্ণ, কিন্তু চারপাশে যে তার বেডটা রয়েছে বেডটা কেমন, বেডটা রয়েছে গ্রিন ওয়ার্ম এবং সানসোক্ট মানে পর্যাপ্ত সূর্যরশ্মি পেয়েছে। হিজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স, তার যে ফিট মানে পা, তার যে পাগুলো আছে ওগুলো फूलेर माझखाने আছে, ठीक है। हिज फीट अमंग द फ्लावर्स, उसका जो पैर है वो कहाँ है, तो फ्लावर्स के बीच में है, मतलब चारों तरफ क्या है, फूल है, ठीक है, वहीं पे उसका फीट है। ही स्लीप्स, ऐसे वो सोया हुआ है। सर के पीछे उसके क्या है, तो पिलो है, तार माथार पेछने कि आछे एकटा पिलो आछे, किसेर तैरी, तो फर्नेर तैरी। पायेर काछे कि आछे, तो पायेर काछे कि आछे, फ्लावार्स आछे माने फूल आछे, आर एभाবে से घुमाচ্ছে। हिज स्माइल इज लाइक एन इनफैंट, আমাদের যে সোলজারটা হাসছে তার স্মাইলটা কেমন, একটা ছোট্ট ইনফ্যান্ট মানে হয়ে গেল শিশু, একটা শিশু যেভাবে হাসে সেভাবেই इन्फेंट मतलब हो गया बच्चा, एक बच्चा जैसे हंसता है वैसे ही कौन हम लोगों का सोल्जर हंस रहा है, उसका स्माइल उसी का जैसा है। तो हम একজন শিশু যেমন হাসে, একটা শিশু যেমন হাসে তেমনই হাসিটাকা আমাদের সোলজারের, মানে সোলজারের স্মাইলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কার, তো ইনফ্যান্ট মানে শিশুর স্মাইলের তুলনা কবি আমাদের করেছেন। কেমন আছে সেই স্মাইলটা, তো সেই স্মাইলটা হয়ে গেল জেন্টল, জেন্টল মানে হয়ে গেল নম্র ভদ্র। उसका स्माइल कैसा है, तो वो जेंटल है, ठीक है, नम्र। विदाउट गाइल, गाइल मतलब हो गया छल, गाइल माने हो गया छलना। একটা শিশুর স্মাইলে যেমন কোনো ছলনা থাকে না, কোনো পাপ থাকে না, তেমনি এই যে সোলজারটা আছে তার স্মাইলের মধ্যেও কোনো পাপ নেই, কোনো পাপ নেই। লেখক এটাই বলছেন, মানে একটা ছোট্ট শিশুর স্মাইলের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন কার, তো সেই সোলজারের স্মাইলের তিনি তুলনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কি বলছেন, आह नेचर कीप हिम वार्म, क्या बोल रहे हैं नेचर को, वो बोल रहे हैं कि उसको गर्म रखो। আমাদের যে সোলজারটা শুয়ে আছে পোয়েট রিকোয়েস্ট করছে, আহ নেচার কিপ হিম ওয়ার্ম, नेचरকে रिक्वेस्ट করছে, नेचरকে रिक्वेस्ट করছে, ठीक है। नेचर को रिक्वेस्ट कर रहे कौन, तो हम लोगों का पोएट रिक्वेस्ट कर रहे, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टू कीप हिम वार्म। আমাদের পোয়েট বলছেন কাকে, নেচারকে, যে একে একটু গরম রেখো, एके একটু उष्ण रखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा गर्म रखिए, नहीं तो क्या होगा, ही मे कैच अ कोल्ड, ही मे कैच कोल्ड, নাহলে কি হবে, সোলজারে কি হতে পারে, তো ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। নেচারকে পোয়েট রিকোয়েস্ট করছে যে তাকে একটু গরম রেখো, নইলে কি হতে পারে, তাকে একটু উষ্ণ রেখো, নইলে কি হতে পারে, তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है नेचर को कि उसको थोड़ा गर्म रखिए, नहीं तो क्या हो सकता है, उसको सर्दी लग सकता है, ठंड लग सकता है।
द हमिंग इंसेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट है, অনেকগুলো পতঙ্গ আছে, সেখানে ইনসেক্ট আছে, তারা কি হামিং, হামিং মানে কি হচ্ছে नॉइज। तो जो इंसेक्ट है उसका आवाज़ को क्या कह रहा है यहाँ पे, हमिंग, ठीक है। तो आवाज़ करने वाला वहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स है, ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট। তো যে আওয়াজ করছে পতঙ্গ, যে পতঙ্গগুলো সেখানে আওয়াজ করছে সে কিন্তু ডিস্টার্ব করছে না কাকে, হিজ রেস্ট। হিজ मतलब किसका, তো সোলজার্স, আমাদের সৈনিক, আমাদের যে সৈনিকটা ঘুমিয়ে আছে তাকে डिस्टर्ब করছে না, কে डिस्टर्ब করছে না, द हमिंग इंसेक्ट। हम लोगों का सोल्जर जो सोया हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कौन, तो हम लोगों का हमिंग इंसेक्ट्स। अब पता चलेगा क्यों नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। ही स्लीप्स इन सनलाइट, वो सोया हुआ है किसमें, सनलाइट में वो सोया हुआ है। সূর্য রশ্মির মধ্যে সে কি শুয়ে আছে, কোথায় শুয়ে আছে, তো ভ্যালিতে শুয়ে আছে। ওয়ান হ্যান্ড অন হিজ ব্রেস্ট, তার একটা হাত কোথায় আছে, একটা হাত তার বুকে আছে, একটা হাত তার কোথায় আছে, বুকে আছে। ब्रेस्ट मतलब हो गया चेस्ट। यूजुअली फीमेल्स के चेस्ट को क्या कहते हैं, तो ब्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक जो हाथ है सोल्जर का, एक जो हाथ है वो कहाँ है, तो वह है उसके ब्रेस्ट पे, मतलब उसके चेस्ट पे। সোলজারের একটা হাত কোথায় আছে, তো একটা আছে তার চেস্টে। एट पीस, से खूबी शांतिते রয়েছে, वो बहुत पीस में है, ठीक है, शांति में। इन हिज साइड देयर आर टू रेड होल्स, उसके साइड में मतलब एक साइड में क्या है, दो रेड होल्स है, দুটো রেড হোল রয়েছে, কোথায় রয়েছে, তো তার সাইডে। এই রেড, এবার আমাদের এতক্ষণ তো আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না, এবার আমাদের মাথায় একটা কোশ্চেন আসবে যে রেড হোলটা কি, তাহলে এই রেড হোলটা এলো কেন, এবং এত সুন্দর নেচারের মধ্যে আমাদের সোলজারটা চুপচাপই বা কেন শুয়ে আছে। अब हम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये दो रेड होल्स क्या है, और इतना सुंदर यहाँ पे नेचर है, यहाँ पे ये सोल्जर चुपचाप सोया क्यों है। तो एक्चुअली ये जो दुटो रेड होल, ये जो दो रेड होल है, ये किससे बना हुआ है, ये बुलेट से बना हुआ है। এটা কি দিয়ে তৈরি, তো বন্দুকের গুলি দিয়ে তৈরি। সোলজারটা সেখানে কি করছিল, তো সোলজার সেখানে যুদ্ধ করছিল। सोल्जर उस वैली में क्या कर रहे थे, तो वो युद्ध कर रहे थे, और युद्ध में ही क्या हुआ, उनको गोली लगी এবং গুলি খেয়েছে যুদ্ধের মধ্যে, এবং সেখানে তিনি মারা গেছেন। गोली लगने के बाद वो वहीं पे मर गया, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग एक्चुअली हमारे जो पोएट তিনি एंटी वार पोएट, ठीक है, एंटी वार पोएट। हम लोगों का जो पोएट है उनको वार पसंद नहीं है, ठीक है, वो बोलना चाहते कि वार से हम लोगों को कोई फल नहीं मिलता है। तो हम लोगों को समझाने के लिए वो स्टार्टिंग में क्या किए, तो नेचर को उन्होंने समझाया कि एक नेचर के जगह में एक साइड तो नेचर है बहुत अच्छा, और वहीं पे एक डेड बॉडी कैसे रह सकता है। একদিকে তো লেখক দেখালেন যে খুবই ভালো নেচার আছে, এবং একদিকে দেখাচ্ছে যে সেখানে একটা মৃত সৈনিক রয়েছে। তো লেখক বলতে চাইছেন যে যুদ্ধ করলে এত বিউটিফুল নেচারও কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারলো না। তো লেখক আসলে যুদ্ধ বিরোধী একজন লেখক, ঠিক আছে, কবি। কবি কি, কবি অ্যান্টি ওয়ার পোয়েট, তিনি একজন অ্যান্টি ওয়ার পোয়েট, তিনি যুদ্ধ বিরোধী একজন কবি। তো পোয়েমটার মধ্য দিয়ে তিনি সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে যুদ্ধের আসলে কোনো ফল হয় না, তাই যুদ্ধ আমাদের করা মোটেই উচিত নয়, ठीक है। तो पोएट कहना चाहते हैं कि युद्ध से हम लोगों को कुछ मिलता तो है ही नहीं, इसीलिए युद्ध हमें करना नहीं चाहिए।